مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ سعودی وزارت دفاع کا 1 گھنٹے کے دوران دارالحکومت ریاض کی جانب داغے گئے 7 میزائلوں سمیت 8 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ 1 میزائل مشرقی صوبے کی جانب داغا گیا تھا۔ سعودی علاقے الخراج میں گرائے گئے ڈرون کے ملبے سے 6 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دبئی پورٹ پر کویت کے بڑے آئل ٹینکر پر حملے کے بعد لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ حکام کے مطابق عملے کے 24 ارکان محفوظ ہیں۔ شارجہ میں ٹیلی کمیونیکیشن عمارت پر ڈرون حملہ ہوا، جبکہ دبئی کے علاقے البدعہ میں ملبہ گرنے سے آگ لگ گئی، جس سے 4 افراد زخمی ہوئے۔ ادھر عراق میں مسلح گروہ نے امریکی اڈوں پر 19 حملوں کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل نے بابل اور الانبار میں عراقی نیم فوجی اڈوں پر فضائی حملے کیے۔ سلیمانیہ میں بھی پشمرگہ فورسز کے ہیڈ کوارٹرز پر ڈرون اور میزائل حملے ناکام بنا دیے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی اخبار کا ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو بتایا ہے کہ وہ آبنائے ہورمز کھولے بغیر ہی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آبنائے ہورمز کھولنے کا پیچیدہ آپریشن بعد میں کرنے پر غور۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران ہمارا فوجی آپریشن ختم ہونے کے بعد آبنائے ہورمز کھل جائے گی۔ ایران نے پھر بھی آبنائے ہورمز بند رکھی تو ایران کو سنگین نتائج کا سامنا ہوگا۔ ایران کی رضامندی یا امریکہ سمیت بین الاقوامی فوجی اتحاد کے ذریعے آبنائے ہورمز کھولا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران معاہدہ 6 اپریل کی ڈیڈ لائن سے پہلے کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو دلچسپی ہے کہ خلیجی ممالک ایران جنگ کے اخراجات میں اپنا حصہ ڈالیں۔ Well, 4 to 6 weeks estimated timeline. Again, you just said we're on day 30 of the operation. I just provided you with some of the updates from the Pentagon directly in achieving the objectives, and the military has been enormously successful. I think we should all be very proud of our armed forces for what they have done over the past 30 days. The mission will continue until the objectives are achieved, and that 4 to 6 week timeline does remain. Back during the Persian Gulf War, 1990, 1991, Arab countries paid for the vast majority of the cost of the war. Kuwait, Saudi Arabia, the UAE. Who's paying for the cost of this war? Will those Arab countries step up to do just that? Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that, but certainly it's an idea that I know that he has, and something that I think you'll hear more from him on. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی فورسز کے خطے سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ دیکھیں ہم نے ان کی فضائی کمان کے ساتھ کیا کیا۔ ایران کی کارروائیاں دشمن جارح قوتوں کے خلاف ہیں۔ جارح دشمن نہ عربوں کا احترام کرتے ہیں، نہ ایرانیوں کا، نہ وہ سیکیورٹی دے سکتے ہیں۔ ایران سعودی عرب کا احترام کرتا ہے اور اسے برادر ملک سمجھتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے ٹرمپ کے مذاکرات کی دعوے کی تردید کر دی۔ کہا ایران کو بھیجی گئی تجاویز میں سے زیادہ تر غیر حقیقی، غیر معقول اور حد سے متجاوز تھیں۔ یہ خوش آئند ہے کہ خطے کے ممالک امن اور سلامتی کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ایران سے معاہدہ نہ ہوا اور آبنائے ہورمز جلد نہ کھولی گئی تو ایران کے بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں، تیل کے کنووں اور پانی صاف کرنے والے پلانٹ سمیت وہ تمام مقامات تباہ کر دیں گے جنہیں اب تک جان بوجھ کر نہیں چھیڑا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر دھمکی۔ کہا کہ 1 ہفتے میں معلوم ہو جائے گا کہ ایرانی اسپیکر غالباف امریکہ کے ساتھ کام کرنے پر تیار ہیں یا نہیں۔ ایران میں حکومت تبدیل ہو چکی، ہم نئے لوگوں کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہیں۔ نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کی حالت خراب ہونے کا خدشہ ظاہر کیا۔ ایران کے خلاف جنگی اقدامات اور عوامی حمایت میں کمی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کم ہو کر 33% رہ گئی۔ یونیورسٹی آف میساچیوسیٹس ایمہرسٹ کے نئے سروے کے مطابق صرف 33% افراد نے ٹرمپ کی کارکردگی کو سراہا، جبکہ 62% نے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ 29% افراد نے ایران کے خلاف کارروائیوں میں ٹرمپ کی پالیسی کی حمایت کی، 63% نے اسے مسترد کر دیا۔ مہنگائی، روزگار، امیگریشن اور ٹیرف پالیسیز پر بھی عوام کا بڑی تعداد میں عدم اطمینان کا اظہار۔ مہنگائی کے معاملے پر 71% نے کارکردگی کو ناقص قرار دیا۔ سروے کے مطابق 2024 میں ٹرمپ کو ووٹ دینے والے 17% افراد اب اپنے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार चीन रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर दौरे के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत हाल, पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के आलमी उमूर पर बातचीत होगी। तर्जुमान का कहना है कि इसहाक डार हेयरलाइन शोल्डर फ्रैक्चर और डॉक्टर्स के आराम के मशवरे के बावजूद चीन का दौरा कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान जंग और इस्लामाबाद में वज़राए ख़ारजा मुशावरत पर तबादला ख्याल। सदर यूरोपीय यूनियन काउंसिल का जंग के तूल पकड़ने और आलमी असरात पर शदीद तशवीश का इजहार, पाकिस्तान की अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों की तारीफ। कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सिर्फ मुकालमा और सिफारतकारी ही हल है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम किया जाना चाहिए। इसराइल का मस्जिदुल अक्सा और होली चर्च तक रसाई रोकना नाकाबिल कबूल है। ऐसे इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ये बात पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारजा के मुश्तरका एलामिये में कही गई। मुश्तरका एलामिये में मकबूजा बैतुल मक़दस में मजहबी मकामात की कानूनी हैसियत तब्दील करने की इसराइली कोशिशों को मुस्तरद किया गया। रमजान में मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद रखने को खिलाफ वर्जी करार दिया गया। उर्दन के महकमा औक़ाफ़ को मस्जिद अक्सा के उमूर का वाहिद वजाज़ इदारा करार दिया गया और आलमी बरादरी से इसराइली इक़दामात रोकने के लिए मौसर किरदार अदा करने की अपील की गई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, उर्दन के शाह अब्दुल्ला और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के दरमियान सहफरीक़ी मुलाकात, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और बढ़ती फौजी कशीदगी के असरात पर बातचीत की गई। मुलाकात में तवानाई की सप्लाई और बैनुल-अक़वामी नक़्ल व हमल की आज़ादी को लाहिक़ ख़तरात भी मौज़ूए बहस आए। तीनों रहनुमाओं ने खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। चीन की बड़ी शिपिंग कंपनी कोस्को के 2 कंटेनर बरदार बहरी जहाज आबनाए होर्मुज़ अबूर कर गए। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक इन बहरी जहाज़ों से गुज़श्ता रोज़ वक्फे से आबनाए होर्मुज़ पार किया और अब वो मलेशिया की बंदरगाह पोर्ट क्लॉन्किन की जानिब रवाना है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इस्फहान में शदीद धमाकों की वीडियो सदर ट्रंप ने अपने अकाउंट से भी शेयर कर दी। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि गुज़िश्ता रात इस्फहान में असलहा गोदाम पर 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों से हमला किया गया। तेहरान में धमाकों के बाद कई इलाकों को मुअत्तल होने वाली बिजली बहाल। इसराइली फौज की तेहरान के मगरबी इलाकों को खाली करने की वार्निंग। आबनाए होर्मुज़ के करीब जजीरा क़ुस्म के नज़दीक एक कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद हलाक। जुनूबी लबनान में हिजबुल्लाह की कार्रवाई में मजीद 4 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी 2 मार्च से अब तक हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 10 हो गई। मुतादिक टैंक भी तबाह किए गए हैं। इसराइली शहर हैफा में रिफाइनरी पर दूसरा हमला, आग भड़क उठी। ईरानी पासदारान इंक़िलाब का खित्ते में अमेरिका के 5 फौजी अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। कहा, अमेरिका और इसराइल के पायलट्स की कमी गाहें भी निशाना बनी। पासदारान इंक़िलाब के क़ुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ानी ने कहा है कि इसराइल नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। नेतन्याहू ख्वाब देख रहे थे कि खत्ते में सिक्योरिटी बेल्ट को वसअत दी जाएगी, मगर लेबनान की हिजबुल्लाह ने शिमाल और यमन की अंसारुल्लाह ने जनूब से आग बरसाकर आबादकारों को दिया गया तहफ़्फ़ुज़ का झूठा वादा आश्कार कर दिया। ये हमारी जंग नहीं, हम इसमें नहीं उलझेंगे। बरतानिया को डोनाल्ड ट्रंप की जंग में नहीं धकेला जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई में शरीक न होने का ऐलान। कहा कि बरतानिया दिफाई इक़दामात जारी रखेगा, आबनाए होर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए काम करता रहेगा। स्पेन ने ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले अमरीकी तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। हिस्पानवी वज़ीर दिफा ने कहा कि स्पेन में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मिस्र के सदर अब्दुल फातिह अल सीसी का भी अमरीका को ईरान में जमीनी अफवाज भेजने से रोकने पर जोर। अमरीकी इंसदादे दहशतगर्दी मरकज के मुस्ताफी डायरेक्टर जो केंट की अमरीकी अवाम से व्हाइट हाउस और कांग्रेस नुमाइंदों को फोन करके जमीनी फौजी कार्रवाई रुकवाने की अपील।
व्हाइट हाउस और अमरीकी कांग्रेस के फोन नंबर भी जारी कर दिए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बुलंद सतह पर मुस्तहकम। ब्रेंट खाम तेल 113 जबकि WTI $103 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। UAE बर्बन खाम तेल $116 फी बैरल की सतह पर है। सूबों की मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ की मुखालिफत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कौमी क़यादत का इजलास। सूबाई वुज़्फ़े खजाना पर मुश्तमिल ज़ेली कमेटी कायम कर दी गई। ज़राए के मुताबिक ज़ेली कमेटी स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक तजवीज़ पर आज नज़्र-ए-सानी करेगी। इजलास में तवानाई और ईंधन की बचत के लिए इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया गया। सूबों पर भी 254 अरब के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सूबे की मुशावरत से नई हुकूमती पॉलिसी का ऐलान आइंदा 24 से 48 घंटों में किया जाएगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला नहीं हुआ। स्मार्ट लॉकडाउन पर सूबों की राय मुख्तलिफ है। हम कभी ऐसे किसी फैसले का हिस्सा नहीं बने जो अवाम पर बोझ बने। बोले KP में 1000 अरब से ज्यादा NFC अवार्ड नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। मुस्लिम दुनिया बहरान में हमेशा पाकिस्तान की तरफ देखती है, लेकिन जंग में किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 25 मार्च से अब तक बारिशों के बाइस 18 अफराद जान बहक, 72 जख्मी हुए, 60 घरों को नुकसान पहुंचा। PDMA ने बारिशों में नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। शुमाली और मशरकी बलूचिस्तान और कोहे सुलेमान रेंज में बारिश के बाइस अब तक 4 अफराद जान बहक और 7 जख्मी हुए। मरी में झीका गली चौक से लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला जारी, मुल्हिका आबादी को मुश्किलात। वादी नीलम में 2 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शारदा, अड़नकेल, ताउबट में 2 से 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। महकमा मौसमियात ने क्वेटा समेत बलूचिस्तान के 15 अजला में आज रात से 4 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई कर दी। PDMA ने नदी नालों में तूफ़ानी फ्लैश फ्लड के खतरे के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इस्लाम में ग्लेशियाई झीलों के फटने का भी खदशा। शदीद बारिशों के पेश नजर चित्राल, अपर, लोअर, दीर अपर, स्वात और कोहिस्तान के इंतजामिया को अलर्ट जारी। और सन 60 से 80 की दिहाइयों में अपने तख्लीकी फन से पाकिस्तानी मौसीकी को एक मुनफरिद पहचान देने वाले मौसीकार सुहेल राना की आज 87वीं सालगिरह। फिल्मी गाने हों, कौमी तराने या बच्चों के लिए गीत, उनकी कंपोज की गई धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं।